Piyush, 9 out of 10 people are running wrong. Every step they take in that jog is hurting them. When I first left in 2004, I left with $100. Someone in US gave me some money. My plane ticket was on a loan, which was paid 2-3 years later. Patients और clients भी machine है यार, machine ही तो तैयार कर रहे हैं हम. आप देखो ना आज का environment और आज का stress शरीर इसके लिए थोड़ा ना बना था यार. डेथ बेड पे भी लोग अपनी पूरी लाइफ की जमा पूंजी खत्म कर देते हैं. तो पहले क्यों नहीं कर सकते हैं वो? तो इससे क्या हो रहा है ना, देखो हमारी बॉडी परफेक्ट कब चलती है जब होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है. होम्योस्टेसिस मतलब एक परफेक्ट सिचुएशन बॉडी के लिए. खाना खाने के बाद ना एक वार्म फीलिंग होनी चाहिए जो हम लोगों को होती नहीं है. खाना आपका डाइजेस्ट हो रहा है, आपको $50 एन आवर से लेके $1,000, $2,000, $1,500, $500, $300 पर आवर भी आप इन सर्विस के लिए पे कर सकते हैं. पर आवर के लिए पे कर सकते हैं. हाय दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और स्वागत करता हूं आप सबका एक बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट सीरीज़ में जिसका नाम है करियर्स Q&A. इस सीरीज़ के दौरान हम मिलेंगे बहुत सारे प्रोफेशनल से और जानेंगे उनकी पूरी करियर जर्नी के बारे में. देखेंगे उन्होंने कहां से स्टार्ट किया और आज वो कहां पे अपने करियर जर्नी में. और इसी पॉडकास्ट में आज के हमारे पहले गेस्ट हैं मिस्टर तनवीर लोगानी. सो तनवीर इज़ काइनेसोलॉजिस्ट, अ ह्यूमन परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट, एंड उनकी गाइडेंस में अभी हाल ही में हुए एशियन गेम्स जो चाइना में थे 2023 में, उसमें हमारे कई सारे एथलीट्स ने कुछ मेडल्स भी जीते हैं. सो तनवीर, हाय, वेलकम टू द शो. थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस टुडे. सो तनवीर, सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आप थोड़ा सा हमें किनियोलॉजी के बारे में बता सकते हैं? जैसे हम जानते हैं कि डेंटिस्ट क्या करता है, एक गायनेकोलॉजिस्ट क्या करती है. सो व्हाट डज अ किनियोलॉजिस्ट डू? Piyush, before I answer your question, I want to congratulate you on starting this new podcast and having me as your first guest. I'm really obliged. Kinesiology, Piyush, is a very I won't say it's a complicated field, but it involves a lot of different professions which collide and conglomerate and they come together as one. And that's where we find solutions for different health and wellness and fitness issues and problems or solutions that people need. Kinesiology, if I was to define it, it's the science of movement. It could incorporate physiotherapy, chiropractic work, nutrition science, integrative medicine, AI, which is the buzzword these days. It also involves a lot of engineering, physics is involved. So a lot of different medical fields and health and wellness sciences, they come together and make up kinesiology. बट तनवीर, इतना सब पढ़ना एक इंसान के लिए, राइट, टू स्टार्ट फ्रॉम सम करियर एंड देन इतना सब पढ़ना, लाइक फिजियोथेरेपी यू सेड, राइट, कायरोप्रैक्टिस यू सेड. सो हाउ डिड यू लर्न ऑल ऑफ दिस? पीयूष, ये इतना सारा नहीं है. It's इतना सारा in if you look at it in a short period of time. You know how I work and how I feel a lot of different medical sciences should work is with case studies. You know, every patient or every client you see should be a case study. So I gained this knowledge, of course, professionally in a short period of time. But I think this field requires a lot of continuing education. And a lot of inputs come from different fields. And we use those inputs to find solutions to things that sometimes modern day medicine and modern day science hasn't been able to. तो तनवीर, एक क्वेश्चन, आपने पढ़ाई क्या करी थी एग्जैक्टली? लाइक जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए MBBS करना पड़ता है मुझे, राइट? मैं MBBS से स्टार्ट करता हूँ, तो क्या आपका भी वही करियर पाथ रहा है? When I first started doing this, there was no specific course for kinesiology. Now there is. Okay. It used to be either you take up athletic training or you take up nutrition or you take up health and wellness fields or you take up something to do with strength and conditioning or yoga or massage therapy school. अच्छा. You can take these up individually, and that's how I built up my portfolio. I did kinesiology school, I went to massage school, I did Thai massage school, I went to chiropractic school. I did all of these things, and when they come together for me, that's when it works. तो इसका मतलब आपने बहुत सारे छोटे कोर्सेज किए, या कुछ डिग्रीज थी या कुछ डिप्लोमास थे? किस टाइप के कोर्सेज थे? उसमें छोटे कोर्सेज भी थे और उसमें let me give you a range. It had courses which would be a week, it had courses which would be a year, okay. And I also did degrees which were 4-year degrees.
Okay. The whole point behind this is to let you know that what you gain in those 4 years or 6 months or a week or 1 year is not what you put out. What you put out is what you have found out doesn't work. Okay. I know a lot of things that work, but I do know a lot of other things that a lot of other people won't know that don't work. And that comes with experience and having case studies and putting your focus behind a very few people you work with and not having a plethora of clients or patients that you see in a day. You know, that's समझ गया मैं। when you तब क्या होता है ना, तब आप सिर्फ बिजी हो लोगों को देखने के लिए. हाँ। आपको कंटिन्यूइंग एजुकेशन का कैसे चेंज हो रहे हैं डायनामिक्स, कल्चर, एनवायरनमेंट कैसे चेंज हो रहा है, फूड कैसे चेंज हो रहा है, आरडीए रेगुलेशंस, आरडीए वैल्यूज अब चेंज होती जा रही हैं, है ना. तो उसको आपको पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलेगा, तो लोगों को कैसे हेल्प करोगे. एग्जैक्टली तो तनवीर आपके पर्टिकुलरली पेशेंट्स कौन रहते हैं, कौन आपके, जैसे हमने बात की आप कोच भी करते हैं राइट इंडिया पैरालंपिक टीम को, ये एक कैटेगरी हो गई आपकी राइट. इसके अलावा लोग आपके पास अगर एज अ पेशेंट आते हैं तो वो किस चीज़ के लिए आते हैं? Piyush, I see a wide variety of people. I see people for fitness. Okay. I see people with lifestyle diseases who haven't been able to find a solution. Cholesterol high है, दवाइयाँ लगी हुई हैं, statin चल रहे हैं, अच्छा। diabetes हो रही है, thyroid problem हो रही है. We are seeing a lot of this in today's world, and people don't even know they are suffering through this. The symptoms that they see, मेरे को थकावट हो रही है, मेरी सांस चढ़ रही है, and then they start running in different directions. हाँ राइट. So this is the crux of the whole thing. तो आप उनको हेल्प आउट कैसे कराते हो लोगों को? क्या यूजली आप उन्हें मतलब कुछ एक्सरसाइजेस बताते हो और उसके थ्रू उन्हें रूटीन में लेके आते हो, या यू प्रिस्क्राइब सम मेडिकेशंस लाइक अ नॉर्मल डॉक्टर डज और उस तरह से हेल्प करते हो? Piyush, I work with no medications, Okay, at a very low level, or at a very less. There is very less instances when I actually prescribe medication. There is obviously a space for allopathy, and I am not ever denying that. I have used allopathy. I have prescribed allopathy, but I see people for physiotherapy conditions. I see people for chiropractic work. I would see people for acupressure, acupuncture. So people who've been told knee surgeries, people who've been told back surgeries, somebody who's trying to raise their performance levels, somebody who's trying to have better strength gains, an athlete who's wanting to run faster or jump higher, somebody who's working a 9 to 5 desk and they are falling asleep at their desk and they have low energy levels. So it's a wide variety of people, from special need kids to 80-year-old, 90-year-old male and females. दैट्स अमेजिंग. आप स्पेशल नीड्स के किड्स के लिए भी मतलब इफ़ यू कैन वर्क आउट, दैट्स रियली अमेजिंग. बट इस बारे में और बात करते रहेंगे. अभी एक आते हैं कि आपके घर का कुछ एक स्पेशल मोमेंट्स या अचीवमेंट जो आपको बहुत यादगार, बहुत मज़ेदार लगती है. पीयूष, जैसे आपने अभी कहा था, हाल ही में एशियन गेम्स हुई थी. A lot of people with the media and everything that is going, and you know, people want to be treated by celebrities or Right. people who've been somewhere. But you know, for me, the defining moment of what I have done with Indian Paralympics, and I'm very thankful to the government and Sports Authority of India and Paralympic Association or Paralympic Committee of India for the opportunity. But that's not what defines me. What I've been doing with them, I started doing that. I was doing the same thing 20 years ago. So what defines me is my path and my journey of how I got here. You know, and we might speak about this as we go through this podcast. You know, I left with $100. I had been homeless for months at a time in 15 inches of snow. Wow. So my journey is what defines me, and what I put into how I treat my patients or how I treat my athletes. That's what defines it. होता क्या है पीयूष के, आपको अगर मैंने बोला ना कि आप ये सेब खाइए, आपके लिए सेब बहुत अच्छा है, हाँ, right. है ना. अब एक आदमी तो ये सेब क्यों अच्छा है वो आपको 2 मिनट बता पाएगा, एक आदमी उसके बारे में पूरी किताब लिख सकता है. हाँ, right. तो that the public or the client is not able to see, but you know that one rep that you have given them, how much thought process has gone behind it, सही and कह what रहे is the reasoning behind it. तो ये थोड़ा सा अब हार्डशिप्स पे आते हैं राइट. जैसा भी आपने कहा, आई थिंक आप अपने यूएस टेन्योर की बात करते हैं, जो आप 10 साल यूएस में रहे राइट, एंड आपने NCAA के लिए बास्केटबॉल भी खेला राइट. आपने यूएस के की कई कॉलेजेस को रिप्रेजेंट करा, आई थिंक, और जर्मनी भी रिप्रेजेंट करा, वहाँ भी खेला आपने NCAA में. थोड़ा सा उस टेन्योर के बारे में बताओ, है ना, थोड़ा अपनी हार्डशिप्स के बारे में भी, वहाँ से क्या सीख के आए थे आप, है ना, व्हाट आर योर लर्निंग्स फ्रॉम योर टाइम इन यूएस?
I think I'll give you a timeline. As I was in sixth grade, I had passion for basketball. I would like to think so. और मेरे को लगता था कि I want to pursue this at a highest level, and I wanted to go to the States to pursue this. If I fast forward this, after my 12th grade, I left for the US with an admission for a business degree. Okay. I had no clue about kinesiology or strength and conditioning, or if this is something that I wanted to do. Hell, I didn't even like science in school. I never had science in school. Okay. So I think through my journey of doing what I did with basketball, and at that time, I'm referring to a time where in US, what I am doing here now, even this at that time over there was still new. There were very few people who were doing this. Okay. Now there is a lot of people. With social media, obviously, things have changed. And I think through this journey of having different people while I was playing that sport work with me, I got interested in, how the human body is working. पीयूष, मैं आपको क्या बताऊं कि कॉलेज गेम्स में प्राइवेट प्लेन होते थे और एक पैर दबाने वाला दूसरा, एक पैर दबाने वाला दूसरा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट दूसरा चल रहा है ना. 40 मिनट की बास्केटबॉल गेम है और उसमें 15 प्लेयर हैं, 5 एक टाइम पे खेलते हैं और एक एक प्लेयर की 2-2 घंटे की स्काउटिंग रिपोर्ट, जिस प्लेयर को आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए गार्ड करना है. तो हाईली टेक्निकल. दिस इज व्हाट got me interested and getting into the detail of it. Then as I went there, I realized that the basketball that I knew, that I did over here, was not enough. है ना. जैसे यहाँ पे गली में क्रिकेट चल रहा है, वहाँ बास्केटबॉल चल रहा है, तो मेरे को कुछ नहीं पता था वहाँ के हिसाब से. तो I wanted to build this journey for me where I find every little thing, every little needle in a haystack, every little inch of improvement, psychologically, physiologically, and emotionally, to help me in what I was trying to achieve, which is play professional basketball. Right. Through this, I found a lot of different methods, a lot of different people, a lot of different people I learned from, and I got deeper into it. Now, if I travel back, I think I started coaching back then. But I was coaching myself. Yeah. And I realized back then I started working with, going from here, I was doing individual training for kids, basketball kids at my school, at my university. Okay. So for that place also, at that time, I was ahead of its time in terms of how much an athlete knew for what he knew, right? So this was the journey, and through this, I got interested in this, and then I professionally started achieving these courses, whatever was needed, started going to conferences. This was the whole journey. Whole learning journey. Yeah, this was the whole learning journey. And I think through this, good times happened, great times happened, worst time happens, bad times happened. This is what I know. When I first left in 2004, I left with $100. Yeah. Someone in US gave me some money that we had transferred to the account. Okay. And my plane ticket was on a loan, which was paid 2-3 years later. Wow. I had instances where I was homeless for 6 months, but I was after a mission. And I think that mission for basketball led me to other things. One of my first coaches, he always told me that, Tanveer, if you direct this energy that you have for basketball in something else, you would still do great. And I think it's a testament now of how things are working. Like I see, you've been doing great. Matlab, being a coach for an Indian Paralympic team it's a feat itself. It's amazing. जो आप अपने साथ किया आपने in your journey. अब यही आते हैं. What is your day like to coach an Indian team? Like how do you do? Is it hectic? You do it on everyday basis? कैसा रहता है दिन? See, a lot of these things, a lot of athletes work on a regular basis, but a lot of athletes come on contractual basis also, where they are trying to achieve a certain amount of performance measures in a certain amount of time. You know how I was given a task in these Asian Games. Right. We had 3 people who were not really in the medal run. And the kind of improvements that they made, the improvements that are seen in a year's worth of training, was seen
in 2 months, 3 months, and we achieved those medals. That's your hard work, right? वो आपने अपनी सारी learnings उनमें डाली. I think that is the energy and the hard work of all these years for them and for me that comes together. And I repeat this. No, I've told you this starting of this podcast also, that a lot of people are mesmerized by or flabbergasted by what I'm doing with Indian sports. And वो Indian team का physio है. अरे यार, I was doing these things, what I'm doing with them 20 years ago. And what defines me still today is basketball, because everything that came today or is today is through basketball. And what I achieved in that journey and how far I went. Great. अच्छा, आज मैंने ना एक नया टर्म सही सीख लिया, ह्यूमन परफॉर्मेंस कोच या ह्यूमन परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट, राइट? तो अब ये कैसे करते हैं और इसके क्या क्या मतलब आपको चैलेंजेस आते हैं, और ये क्या चीज़ क्या है, इसमें आप क्या करते हो एक्चुअली में? यार जैसे ना आप एक जॉब पे जाते हो तो वहाँ पे KPIs होते हैं, एक परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, भरते हैं हर 3 महीने में अपना। वैसे अगर आप देखा जाए हर आदमी के हैं। जैसे हमारे बिलव्ड सिनेमाटोग्राफर्स यहाँ बैठे हैं, इनको है कि अभी हम इतना लेट शूट कर रहे हैं, अभी नींद नहीं आनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, हमसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए ना उनको, राइट? है ना? तो ये एक परफॉर्मेंस मेजर है। एक परफॉर्मेंस मेजर एथलीट के लिए है कि कैसे कितनी जल्दी तेज भागना है, कितना तेज हम और हाई जंप कर सकते हैं, एथलेटिक मेजर्स। किसी के लिए है कि यार मेरे को बैक टू बैक मेरे को दिन की 15 मीटिंग्स होती है, मैं सब में फ्रेश होना चाहिए, है ना? न्यू पेरेंट्स को ये होता है यार मैं अपने बेबी के साथ खेल लूँ, उसको ऊपर हटा लूँ, मेरे हाथ में दर्द ना हो, मेरे घुटने में दर्द ना हो। सो आई थिंक पीपल शुड वर्क टूवर्ड्स दीज थिंग्स रादर देन मेरे को वेट कम करना है, वेट लॉस कम करना है ना, मेरे बैक में पेन हो रहा है, या मेरे को और एनर्जी चाहिए, मेरे को और कंडीशनिंग करनी। नहीं, आपके मेजर्स कुछ और होने चाहिए। तो इन परफॉर्मेंस मेजर्स को रेस करने की जो करता है उसको ह्यूमन परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट कहते हैं, विच इज किनेसियोलॉजी रियली। ये क्या परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ भी आएगा कि मुझे ऑफिस में ना दिन में नींद आती, मैं 2-3 ब्लैक कॉफी पीता हूँ पूरा दिन चलने के लिए 8 घंटे, मुझे अपनी परफॉर्मेंस कैसे ठीक करनी है? अब इसके भी ऑब्वियसली तरीके हैं। अगर आप कॉफी पी रहे हो तो बेसिकली आप अपने कोर्टिसोल लेवल्स हाई तो कर रहे हो, आपको अलर्ट तो कर रहा है, बट इट्स ऑल्सो डिसरप्टिंग योर हार्मोनल बैलेंस, इट्स डिसरप्टिंग योर डोपामिन जो आपका एनर्जी लेवल्स हाई करता है। कोर्टिसोल के साथ साथ ये कॉफी सेरोटोनिन प्रोडक्शन करेगी। सेरोटोनिन प्रोडक्शन क्या हुआ? सेरोटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जिससे आपको नींद आती है ना? सेम थिंग ये लोगों के साथ कार्ब्स के साथ हो रहा है। दिन में रोटी चावल तो खा लिया, बोल दिया दाल रोटी चावल बड़ा घर का हेल्दी खाया यार, पर ताकत नहीं आ रही, क्योंकि भैया जो कार्ब्स आप खा रहे हो उससे सेरोटोनिन रिलीज होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टडीज हैं, दिस इज मेडिकल साइंस। तो सेरोटोनिन रिलीज होने का मतलब आपको नींद आएगी। लंच में रोटी नहीं खानी मतलब नहीं, खा सकते हैं, एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव। कोई भी डेफिनेट एडवाइस देना बहुत गलत रहता है। और ब्रेकफास्ट में आपको पता ही होगा, सारे डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट कहेंगे स्मूदी पी लो, है ना, तो है। और आप फल खा लो या उपमा खा लो या पोहा खा लो। अरे भैया वो भी तो कार्ब्स हैं। द बॉडी रीसेट्स इन द मॉर्निंग, सो इफ यू गिव योर बॉडी कार्ब्स और शुगर इन द मॉर्निंग, इट विल क्रेव द सेम थिंग ऑल डे लॉन्ग। सो हमारा गोल तो सुबह एनर्जी के लिए है ना। अगर मेरे को एनर्जी के लिए डोपामीन चाहिए और मेरे को सुस्ती के लिए सेरोटोनिन चाहिए, तो मैं डोपामीन वाला खाना खाऊंगा या सेरोटोनिन वाला खाऊंगा? ऑब्वियसली डोपामीन वाला खाऊंगा। ये बाइफर्फिकेशन करनी पड़ेगी। और अगर ये किसी को पॉडकास्ट आपका जो फॉलो कर रहा है, कमेंट्स में आएगा या हम शॉर्ट्स डालेंगे इंस्टाग्राम में, किसी को अगर इसका एक ब्रेकफास्ट का एक ब्लूप्रिंट चाहिए, वो हम PDF फॉरवर्ड कर सकते हैं। वो देना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी वाइफ को दूंगा मैं, वो मुझे ब्रेकफास्ट में रोज पोहा खिलाती है। वो तो हम पॉडकास्ट के बात करेंगे इस बारे में। अच्छा, व्हाट हर एक काम का अपना एक मजा होता है, देयर इज अ फीलिंग बिहाइंड इट कि आप करते हो। व्हाट इज योर प्लेजर टू बिकम अ काइनेसोलॉजिस्ट एंड नाउ वर्किंग टुवर्ड्स working towards human performance and all this stuff? I think a calling to help people or coaching, and like I said before, I look back and I think I failed to see this, that I was coaching myself heavily. No, not many athletes do that because they're so busy training. They have people helping them. Of course I had people helping me, but I was so into it that I was coaching myself. And now retrospectively, if I look now, I think that was my calling, and I always say that coaching is not claiming,
You don't claim things, you give. कोई ऐसा गुरु पुराने टाइम का जिसको आप बहुत याद करते हो, कोई अरे ऐसा कोच? बहुत बहुत हैं और बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे अब वो लोग. आई एम रियली प्राउड ऑफ देम दैट आई अच्छा. एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड द अपॉर्चुनिटी टू बी around those people. And I will take this opportunity to mention a few names. I think Yeah, they yeah. deserve credit in what I am been doing till now. And a lot of my theory and a lot of things that I do comes in parts from all these people. It's not one. It's what worked for me is what I preach forward. And if I take those names, one is Jay Hernandez, who was a player development coach. In New York, he was in US. He was in US. Okay. He was the first one of the first ones in the country doing player development at that time. Acha. This was no Instagram times, huh? हाँ. And now, if now he's working with the NBA. He worked with the Charlotte Hornets. He's worked with I think the Orlando Magic. Okay, great. And he's working with the Brooklyn Nets. He's Wow. he's their assistant coach. Okay. Few other names I would mention in the strength training world would be Louis Simmons, one of my gurus, and Laura Phelps, also Marv Marinovich. If I look basketball side, Yeah. Gannon Baker, Dorian Lee. So these are some of the guys I picked. Not some of the things. A lot of the things that I do. lot of things, right. तनवीर, स्ट्रैटेजी क्या रहती है? लाइक करियर में इतना इन्वॉल्व कर लिया अभी, राइट? कोई ऐसा स्ट्रीम भी नहीं था, क्योंकि ऐसा नहीं कि साइंस था, डॉक्टर बनना था, ऐसा भी कुछ नहीं था. तो यानी कि कुछ कॉमर्स के बाद बास्केटबॉल खेलना शुरू किया. अब नाउ टुडे यू लुक एट द इंडियन टीम, राइट? स्ट्रैटेजी क्या रही टू रीच एट दिस लेवल? Continuing education and passion. कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी लगाते हो कि हर एक पेशेंट को किस तरह से देखना है और उसकी वजह से वो वो एक तो ने मैंने दूसरे आपको को बताया sponsor था किया. कि लिमिटेड पीपल देखने हैं. No looking at the clock, sending the patient or the client away when you feel satisfied, because trust me, session is more than an hour. Yeah. It takes long. So you look at each patient like you are doing a case study, or at the end of your course, at the end of your degree, the paper that you're doing, you look at each patient and each client like a case study. Work with few people, get them to optimal health or whatever they're trying to achieve for what they came to you for. रणवीर, ऐसा कोई पैटर्न कि अगर कल को मैं बनना चाहता हूँ एक ह्यूमन परफॉर्मेंस कोच, और मैं आगे चाहता हूँ कि कोई इंडियन गवर्नमेंट मुझे हायर करे, या मैं कुछ लोगों को कोच कर पाऊँ, तो उसके लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा या मेरी क्या ग्रोथ रहेगी, वो किस तरह से कोई अचीव कर पाएगा? Through this question, no, I'll kill a few birds with this one stone. अच्छा. So इसमें हम ये भी बताते हैं कि क्या कैरियर ऑप्शंस रह सकते हैं. हाँ. हम ये भी बताते हैं कि इसमें आप कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हैं, हाँ. या आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, हाँ, exactly. और इसके क्या क्या राउट है. हाँ. You can either take small courses, अच्छा. like I said, a lot of these things are built over the years. So if you have a basic understanding of health, or even if you don't, I never knew what science was when I started this. I think you can take courses along the lines of health and wellness, yoga, Yeah. fitness, nutrition, engineering, robotics. And once you start getting in this field and you move around a circle of these people, you start accumulating things. And you can do physiotherapy school, you can do athletic training school, you can do chiropractor school, or you could do it all. Yeah. Like There is ways to do it all. And if you look specifically in India, we at Trumaco have launched an academy, not officially right now, it's coming up. It's Okay. called Trumaco Institute, where we Okay. will be launching courses for kinesiology. Oh, great. Which would involve, like I said, massage, acupressure, physiotherapy, chiropractor, sports science, robotic, engineering, health and wellness, fitness, all of these things. All of these. We'll have small ones, we'll have larger group of courses, and this will be a hybrid model. We are completely against then doing everything online. Yeah. So it'll be a hybrid model. And I think the way I want to impart, and the way I want to answer your other question, the way I want to impart this knowledge or use my time or attain what I'm trying to attain is through a few things. One is
looking at as many people as I can in the way I want to work Yeah. till I'm here on this earth. Wow. The other way is to impart what I have gained over all these years till my time on earth, as much as I can. And I want to leave a mark on Indian sports. I also want to, not just by me coaching these athletes and these athletes winning, we just did 3 medals. The country did 111 medals. So we are a small pie of the pie, a small piece of the pie is what I like to think. And I think through Trumaco Institute, what we are trying to do is we are trying to impart this knowledge to coaches who are already in this field, doctors, physiotherapists, Right. who take up this knowledge and forward this knowledge to the Indian athletes or work with Indian athletes with a bigger picture or with bigger mission or a vision of India winning more and more medals at an international stage. Medals. Is Right. how I want to go about things. That's great. तो मतलब इंडियन गवर्नमेंट के लिए ऐसा कोच बनने के लिए कुछ आपने गवर्नमेंट को अप्रोच किया या आपके पास वो एथलीट्स ट्रेनिंग कर रहे थे उन्होंने आपको रेफर किया या ये किस्सा कैसे हुआ? It was a mix of things. Obviously, some people see me on social media. Right. Some people have known me in the past. There is people that introduced me to certain people, and it was just to a conglomeration of things that this thing came about. Okay. असली में मेरे को लेके आए थे कि some athletes were not in the medal run. अच्छा. And the chances of their medal were slim. So Okay. what they wanted out of me was to attain this high level of performance in a short period of time. कईयों ने मेरे बारे में सुना था, कईयों को मेरे बारे में पता था कि ऐसा चीज़ होता है. हाँ. तो मेरे को अप्रोच करा गया कि इन एथलीट्स को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है और इतने टाइम में ही बस लेके जाना है. लेके जाना है. वाह. ये ऐसे चैलेंजेस मेरे को पसंद आते हैं. मैं इसलिए कम लोगों के साथ काम करता हूँ और उसमें पूरा अपना जी जान लगा देता हूँ. या और यानी पहली बारी में 3 मेडल्स फॉर द कंट्री. आई थिंक दिस इज द मोस्ट इन एनी पैरा एशियन गेम्स इन पावर लिफ्टिंग. वाओ, दिस इज ग्रेट. ये सच में बहुत मजेदार है. अच्छा तनवीर, हमने आज 2-3 चीजें सीख ली. काइनेसोलॉजी, ह्यूमन परफॉर्मेंस, राइट. अब मैंने कर लिया. मैंने 2-4 कोर्सेज कर लिए, है ना. मैं सीख गया, मैंने फिजियोथेरेपी सीख लिया, कायरो भी सीख लिया, 2-4 चीज़ें पढ़ भी ली जैसे आपने गाइड किया. ठीक है. अब एज अ फ्रेशर मैं क्या सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? एक रेंज देना, पूरी मत बता देना, बट एक रेंज. एक डिपेंड करता है आप कहाँ पे काम करते हो. ठीक अच्छा. है. हमारे यहाँ पे तो कई बार काम करने के लिए पैसे देने पड़ते हैं. ठीक है ना. क्योंकि हम एक we have set up a $2 million facility और यहाँ पे हमने we've put in everything that is in the world in terms of sports science, health and wellness and preventive care, and we give those opportunities to people who work with. Right. But अगर हम salary wise देखा जाए तो यार आपको बताया था कि आप मसाज थेरेपिस्ट की तरह भी काम कर सकते हो. हाँ, समझ गया. एक फिजियोथेरेपिस्ट, और ये फील्ड बढ़ती जा रही है. तो कहीं 20-25 हज़ार से डिपेंडिंग, अब ये भी वेरिएशन है. आप फिजियोथेरेपी में जाते हो या आप मसाज में जाते हो, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो या जॉब करते हो, right. है ना. शुरू में तो मेरे ख्याल से इस फील्ड में ये करना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था कि कंटिन्यूइंग एजुकेशन और एक्सपीरियंस से बनता है. अगर आप किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास जाते हो तो उसकी 15 साल की पढ़ाई आपके सामने एक बार में होती है. है ना. आपको वो कंटिन्यूइंग एजुकेशन करने के लिए इतना तो लर्निंग कर्व कम हो जाता है. तो आप मैक्सिमम ऐसे लोगों के साथ काम करिए पहले तो. ठीक है ना. उसके बाद फिर आप अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं. ध्यान में ये रखना है अगर आपको किनेसियोलॉजिस्ट बनना है कि इन सब लोगों की आंखें, फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, इंजीनियर, रोबोटिक्स, एआई, ये एक टाइम पे खुली होनी चाहिए एक बंदे को देखने के लिए. एक बंदा देखने लगा, है ना. तो बहुत मैजिकल चीजें अचीव होती हैं. फिर भी जब शुरू करेगा तो 25-30 हज़ार रुपये एक्सपेक्ट कर सकता है. हाँ. और जब 5 साल बाद जहां तक मर्जी जाओ यार, आप अपनी वैल्यू कुछ भी लगाओ ना. एक वकील एक हियरिंग के 5 लाख भी लेता है. तो फिटनेस कोच क्यों नहीं ले सकता? या जो डॉक्टर आपको पैरासीटामोल लिख के देता है वो क्यों नहीं लेता? उसको पैरासीटामोल लिखने के लिए 10 साल पढ़ाई करनी पड़ी. आपके लिए उसने पर्ची पे लिख दिया. एग्जैक्टली. है ना. तो ये देखने की बात है.
मतलब ये सैलरीज का कोई बार नहीं है, 5-10 साल यार बाद अब यू जैसे कैन, इंडस्ट्री ग्रो हो रही है तो कोई बार नहीं है, कोई बार नहीं है, कहाँ से राइट? बाहर आएगा? कोई आप बार करिए नहीं ना है, काम, आप अपनी वैल्यू खुद बनाइए, आप रखिए, मैं इतने पैसे लेता हूँ राइट। शुरू कर ले 25,000 से, बट 5 साल बाद तो 2 लाख ले सकते हो, दो आराम 3 से, लाख महीने का आराम से कमा पीयूष, आप सकते हो। अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो ना आप, और 10 साल बाद तो आई थिंक फिर लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। ना? जितना अच्छा सेटअप कर लिया, जितनी अच्छी पढ़ाई कर ली, जो एक्सपीरियंस ले लिया, उस हिसाब से आपके महीने पीयूष की अगर इनकम इन 4-5 सर्विसेज लाख। के लिए आप यूएस जाओगे ना किसी के पास, या कोई वेस्टर्न वर्ल्ड में जाओगे, तो आपकी बात मैं ऐड कर रहा हूँ, आपकी बात मैंने ले ली बीच में, बट आपको $50 एन आवर से लेके $1,000, $2,000, $1,500, $500, $300 पर आवर भी आप इन सर्विस के लिए पे Per कर सकते hour? हो, पर आवर के लिए पे कर सकते हो। वाह। और 80 रुपए का $1 है आज का। 80 रुपए का आएगा। जब मैं गया था तब 35-37 का था, तब भी टाइट लगता था। हाँ, तब यार उस टाइम में वो भी बहुत थे ना। अरे आज नारियल पानी लेके आए, हाँ। 60 रुपए का नारियल पानी आया, उस टाइम 7 रुपए का था नारियल पानी। अब आप कह सकते हो इन्फ्लेशन के ऊपर बातें करनी ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट नहीं था, सड़क पे मिलता था। और प्रॉब्लम पता है क्या होती थी? प्रॉब्लम ये होती थी कि ठंडा नहीं होता था, गर्मी में मिलता था और ठंडा नहीं होता था। ठंडा नहीं होता था, वो वैसा ही मिलेगा, वो आज भी बहुत जगह वैसा ही मिल रहा है। तो अब आपने बताया आप रेगुलर पढ़ाई करते रहते हो, राइट? अब हर इंडस्ट्री में आपने देखा कुछ ना कुछ ट्रेंड्स आते हैं, कभी कुछ चल पड़ता है, कभी कुछ चल पड़ता है, राइट? ऐसे ही बीच में वो फिजियोथेरेपी बहुत कुछ चल पड़ा था, लोग अलग अलग चीजें कर रहे थे, है ना? आप उन ट्रेंड्स में कैसे अपडेट रहते हो? अपने आप को लगातार क्या पढ़ाई करते हो या क्या करते हो? मीटिंग्स अटेंड करते मैं हो? ट्रेंड में तो अपडेट नहीं रहता, मैं अपनी आई स्टे इन माई ओन वर्ल्ड, इन माई ओन लेन। I have built a lot of trends, a lot of case studies in my notes that I've built over the years, Yeah. Piyush, and I think my reference point stops there. And Got it. I do a lot of continuing education, but with a mindset of research is shit, because किसी को नहीं पता कि कोहर्ट स्टडी करी है या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी करी है, किस सिचुएशन में करी है, किस सिचुएशन में नहीं करी है, कितने लोग इन्वॉल्व थे, रात को उन्होंने क्या खाया, क्या सोया, कौन से एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वो केस स्टडी कैसे हुई, है ना? द केस स्टडी इज योर एक्सपीरियंस। अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स नाउ, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, ये केस स्टडी दिखाते हैं, ये देखो जी रिसर्च पेपर है। अरे रिसर्च पेपर कहाँ, वो यूएस में हुआ है, यहाँ धूप में लोग पढ़ रहे हैं, एसी नहीं है, पंखा नहीं है, उसकी तरह परफॉर्मेंस थोड़ी ना रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी, है ना? तो केस स्टडी तो बिल्कुल शिट वर्क है। केस स्टडी एंड रेफरेंस builds with your experience and how many people you have solved, and what works for you works for you. वर्क्स फॉर यू। हर एक बॉडी अलग है, सबके लिए अलग स्टडी करनी पड़ेगी, राइट? समझ गया। अच्छा, आपने अभी 2-3 बार टेक्नोलॉजी में नाम लिया, आपने बोला रोबोटिक्स है, एआई है, राइट? आजकल एआई बहुत चल रहा है। तो और मैंने देखा आपके जिम की मशीनरी भी बहुत ही, मैंने पहली बार ऐसी जिम की मशीनरी देखी है, मैंने नहीं देखी है ऐसी मशीनरी किसी और जिम में, राइट? Yes! कुछ सही कर दिया हमने, है ना? बहुत बढ़िया है, ये मशीनरी बहुत सही थी। और जिस तरह से आपने टेक्नोलॉजी में इनबिल्ट करी, मैंने देखा आपने, है ना? और आपने बताया कि ये सब आपने खुद डिजाइन करा है, विच इज वेरी बिग थिंग, है ना? पीयूष, मैं घुस जाता हूँ ना अंदर, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ, डिवाइसेस भी बना रहा हूँ, तो मेरे को लगता है आपका अगला क्वेश्चन था कि इसमें से आपको क्या अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर पा रहे हो इसमें, ये बताओ थोड़ा सा। यार मैं पढ़ा तो मेरे पास सब कुछ है, यूज भी मैं सब कुछ करता हूँ, बट लिमिटेशन के साथ। आई एम यूजिंग अ लॉट, मेरे को इनमें से बेस्ट क्या लगती है, दैट EEG सेंसर्स, EMG सेंसर्स, आइसोकिनेटिक, फोर्स प्लेट्स एक्चुअली मैंने अपनी भी बनाई हैं। अच्छा। और काफ़ी सारी इक्विपमेंट मैं अपनी भी लगा रहता हूँ, मेरे को R&D का कीड़ा है ना? तो मैं इक्विपमेंट बनाता रहता हूँ, न्यू वेज ढूंढता रहता हूँ कि ये फील्ड में क्या चीज़ और नई आ सकती है, ऑलरेडी क्या एग्जिस्टिंग है, उसको इम्प्रोवाइज कैसे करा जा सकता है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजीज़ आर ओनली एज गुड एज द यूज़र, है ना? मशीनें तो सब लोग लगा लेंगे, बट पीयूष, मशीन तो एक डेटा स्पिट करेगी, उस डेटा को कैसे यूज करना है वो ये बताएगा। अपनी मशीनों में ऐसा कुछ कर रहे हो जो स्मार्ट वॉचेस में नहीं है? आजकल तो स्मार्ट वॉचेस सबके हाथ में, स्मार्ट रिंग्स आ गई हैं, लोग सब कुछ उससे मेजर कर रहे हैं। कुछ गोल्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कुछ स्मार्ट वॉचेस आर नॉट रियली द गोल्ड स्टैंडर्ड, यू नो। वो ये है कि कुछ आपको बता रहा है, उसकी लेजिटिमेसी कितनी है, कितनी नहीं है ना? और बहुत सारी ऑब्वियसली ऐसी चीजें हैं जो स्मार्ट वॉचेस में नहीं है, जो हम करते हैं ऑब्वियसली। ओके, हाँ,
ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही मज़ेदार सा ये जो आपने मशीनरी क्रिएट करी है ना, और ये जो आपने बोला मुझे खुद करने का शौक है, मतलब 3 इडियट्स के रैंचो हो आप, है ना, उसने भी फ्रिज खोला तो उससे बंद नहीं हुआ था। आई होप आप सारी मशीनें बंद कर देते हो। पेशेंट्स और क्लाइंट्स भी मशीन है यार, मशीन ही तो तैयार कर रहे हैं हम। आप देखो ना आज का एनवायरनमेंट और आज का स्ट्रेस, शरीर इसके लिए थोड़ा ना बना था यार, राइट राइट, है ना। एग्जैक्टली। कुछ मिसकंसेप्शंस जो हो आपके करियर को लेके, जो सुने हो, या कुछ जो ह्यूमन परफॉर्मेंस को लेके मिसकंसेप्शन हो जो आप क्लियर करना चाहते हो, जो आपने सुना हो लोगों से कि ह्यूमन परफॉर्मेंस में ऐसा होता है वैसा होता है, या ऐसा कुछ, या लोग अपनी परफॉर्मेंस कैसे कुछ सब्स्टिट्यूट लेके इम्प्रूव करते हैं, कैसे करते हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस अबाउट ह्यूमन परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली। I don't think are people are going through these things, but they are not referring to these as human performance. अच्छा। They are referring them to as the symptom they are going through. तो ये problems तो लोगों को हो ही रही है ना कि बैक पेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि जहाँ पे दर्द है या जो चीज़ हो रही है वही प्रॉब्लम है। तो ये एक तरीके की इनडायरेक्ट मिसकंसेप्शन है। अच्छा। और देन यू गो अ स्पेसिफिक राउट, जैसे आपको ब्लड शुगर हो रही है तो आप एक डायबिटिक डॉक्टर के पास चले गए, उन्होंने आपको कुछ मेडिकेशन लिख के दी, आपकी हिस्ट्री ली, आपके साथ बहुत अच्छा काम करा, बट देयर इज सो मच इंटर रिलेशन एंड को रिलेशन दैट एक आदमी का काम है ही नहीं, है ना। तो आप ये कह रहे हो वो डॉक्टर वहां नहीं गया कि मेरी डायबिटीज शुरू कहाँ से हुई थी, वो वहां नहीं पहुंचा, उसने नहीं, बस एक और दवाई दे दी। अगर पहुंचा भी हाँ। तो वो अपनी फील्ड की लिमिटेशन तक ही पहुंचा। सर इतना टाइम नहीं है ना किसी के पास, बट मेरे को तो ऐसे ही काम करना है, मेरे को इसी जगह पे करना है, मेरे को कोई 100 लोकेशन नहीं बनानी है, मेरे को ऐसे ही काम करना है। मैं एक आदमी को करूंगा और उसकी हेल्थ टॉप नॉच बनाऊंगा या उसके परफॉर्मेंस मेजर टॉप नॉच बनाऊंगा और उसकी ब्लेसिंग्स भी लूंगा, राइट, है ना। ये आप एक बंदे को देख के उसकी केस स्टडी करके बताते हो, बट अभी कुछ हमारे पॉडकास्ट व्यूअर्स के लिए जो लोग देख रहे हैं इसे, उनके लिए कुछ एक ज्ञान या मंत्रा जो आपको लगता है बहुत ईजी और डेली लाइफ में करके थोड़ा सा फिट रह सकते हैं, लाइक अपनी लाइफ को थोड़ा सा अप टू द मार्क रख सकते हैं। जो चीज़ें खाते हैं उसको भिगो, प्रेशर कुकर मत यूज़ करो। ओके। ये सारी चीज़ें एंटी न्यूट्रिएंट्स करती हैं, एंटी न्यूट्रिएंट्स बनाती है। A lot of women in our country are going through anemic problems, thyroid problems. राइट। हमारे देश में मंत्रा भी चल रहा है मिलेट्स का। मिलेट्स बुरे नहीं है, हाँ, बट अच्छाई के साथ उसकी बुराई कोई नहीं बता रहा है, उसके एंटी न्यूट्रिएंट्स कोई नहीं बता रहा, पॉलीफिनॉल्स कोई नहीं बता रहा, फाइटिक एसिड उसका कोई नहीं बता रहा, टैनिन्स उसके कोई नहीं बता रहा, है ना। वो ये नहीं बता रहे कि आयरन की कमी की वजह से बाजरा तो खा लिया, हाँ, है ना, और आपने ज्वार तो खा लिया, बट उसके एंटी न्यूट्रिएंट्स आयरन जो उसमें तो है वो तो छोड़ो, जो ऑलरेडी बॉडी में जा रहा है और चीज़ों से उसकी अब्जॉर्प्शन कम कर रहा है। वाह। तो ये बहुत सारी दालों में भी है। अब जब ज़्यादा ऐसे बताते हो तो लोग बोलते हैं यार क्या खाएं, हाँ एग्जैक्टली, है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि एक तो क्यूमुलेटिव एडवाइस बहुत ज़रूरी है। यू कैन नॉट रन इन 5 डायरेक्शंस। आप एक जगह जाइए जो आपको पसंद है। If you like what we do, come to us. Make one place a control center. Not one place will always solve something, but one place should be a control center of you directing to different places if you need to go to a physician. And then that file becomes one. Then that file is being read by a strength and conditioning coach, a nutritionist, a physiotherapist, a chiropractor, somebody who knows how these machines work inside and out, what have been used on you. ये सारे लोग मिलके एक ऑप्टिमाइज हेल्थ लेके आएंगे। नहीं तो 2 महीने में ये गोली खा लो, फिर 2 महीने के बाद ये कर लो, फिर उधर चले जाओ, फिर उधर चले जाओ। लेकिन लोग जाते नहीं डॉक्टरों के पास डर के मारे कि खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। 5-6 डॉक्टर के पास कौन जाएगा? लोग जाएंगे नहीं डर के मारे कि खर्चा बहुत हो जाएगा मेरा। तो पीयूष है ना, फूड इज दाई मेडिसिन, है ना। आई थिंक मेडिसिनल bills will always be more than you doing optimal health. Right. You will be surprised पीयूष, आप खर्चे की बात कर रहे हो ना। हाँ. मेरे पास मैं बहुत सारी सेवा भी करता हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, Got it. बट
वही लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, उन्हीं को हॉस्पिटल्स ने लूटा होता है, वही इतनी सारी रिपोर्ट लेके आ रहे होते हैं। उन बेचारों को तो कुछ पता नहीं होता, ग्लूकोज तक तो वो चेक नहीं कर पा रहे हैं अपना। उनको जो बोलते गए वो उस डायरेक्शन में टेस्ट पे टेस्ट कराते गए। हाँ राइट, है ना, जो सब कराते हैं। तो सही जगह पे पहुंचना जरूरी है पीयूष। हेल्थ की कोई वैल्यू नहीं है पीयूष, है ना। डेथ बेड पे भी लोग अपनी पूरी लाइफ की जमा पूंजी खत्म कर देते हैं। तो पहले क्यों नहीं कर सकते हैं वो सर, है ना। 1500 रुपए का पिज्जा आता है, है ना, बट फिजिशियन को 500 रुपए कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं देगा, क्यों, है ना। तो आई डोंट थिंक health is expensive. Fixing health is expensive, but preventing health is not. Fixing health is more expensive, let's put it that way. तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था, जो मेन क्वेश्चन था कि लोगों के लिए फिर जो उन्हें डेली लाइफ में ऐड करना चाहिए, एक तो प्रेशर कुकर अवॉइड करें, राइट। प्रेशर कुकर खाना भिगो के पहले अच्छे से रखें, उसके बाद खाएं, राइट। सिंपल, वो उनकी एक मेजर वेलबींग को टेक केयर कर लेगा। कांच की बोतलें यूज करें पानी के लिए, प्लास्टिक हटाएं, राइट, है ना। बेसिक्स। एक जमाने में 2,000 नेचुरल टेस्टोस्टेरोन होता था, और अभी 500 भी नहीं हो पा रहा है किसी का। ये ईडी की वजह से प्लास्टिक, लेड, मेटल्स, कुकिंग यूटेंसिल्स अपने घर से फेंकिए, सारे स्टील के यूज करिए। स्टील के यूज करने सारे, एल्यूमिनियम के नॉन टॉक्सिक हटाइए, ये सब हटाइए। ये सारी चीजें ना स्लो पॉइजन है पीयूष। समझ गया मैं। किसी को बोलोगे जो बीमार नहीं है वो तो कर लेगा, अगर बीमार आदमी को आप बोलोगे ना, वो बोलेगा यार बर्तन सिर्फ चेंज करने से क्या हो रहा है यार। सही बोल रहा है, हो सकता है वो 5% ऑफ द इक्वेशन हो, बट वही ऐड हो के बड़ा बन चुका है। तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी तो कहीं जाके एक ऑप्टिमल हेल्थ आएगी, ऑप्टिमल हेल्थ आएगी। ये आजकल नॉन स्टिक के भी लोग काफी अगेंस्ट हो रहे हैं, ये क्या चक्कर है? ये भी कुछ क्या गलत है? इसमें भी टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, क्या है? पहले तो कह रहे हैं नॉन स्टिक यूज करो। कलर कोटिंग है, वो घिस के कलर कोटिंग, जो कलर चेंज हो जाता है वो कहाँ जा रहा है? ये पानी में जो घिस के थोड़ा जा रहा है, थोड़ा यहाँ भी तो जा रहा है अंदर, यहाँ सेटल हो रहा है ना, थोड़ा सा सब यही सेटल हो रहा है। अच्छा, आजकल अब मार्केट में हमने बात कर लिया, आजकल मार्केट में बहुत सारी डाइट्स चल गई हैं। कोई कह रहा है कीटो कर लो, कोई कह रहा है कि अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, 14 घंटे भूखे रहो उसके बाद खाना खाओ। कोई कह रहा है कि हाई प्रोटीन डाइट लो, सिर्फ कार्ब 0 कर दो बॉडी से, है ना, और बॉडी एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगी। तो इस पे आपका क्या टेक है? विच वन ऑफ दीज, इफ यू चूज एनी ऑफ दीज, तो आपका कौन सा फेवरेट है इसमें से? आई नो यू आर प्रॉब्ली एक्सपेक्टिंग अ बिगर आंसर फॉर दिस वन, बट दिस इज वेरी सब्जेक्टिव पीयूष। अच्छा, ऑल आर गुड and all are bad. For which person, in what situation, in what point of time of life, it all depends. And I think it takes me back to performance measures. आपको सिर्फ रोज चलना है या दौड़ना है ना? आपको सिर्फ दफ्तर में बैठ के काम करना है या आप सारा दिन गाड़ी चला रहे हो, है ना? क्या अवेलेबिलिटी है आपके पास? देखो, आधी डाइट्स तो पीयूष इसलिए फॉलो नहीं होती क्योंकि लोग ना बनाने का टाइम हो रहा है, ना वो चीजें मिल रही हैं, ना आप वो अटेन कर पा रहे हो। तो it should be little bit more focused towards how the person's lifestyle is, or in terms of how they move, if they have those availabilities of those things, तो उसके accordingly बनाया जाता है पीयूष। तो हम जो अंधाधुन गूगल पे पढ़ के कि हाँ मैं अगला 1 महीना कीटो करूँगा कि मुझे 10 किलो गिराना है, और गूगल पे बहुत सारा मिल भी जाता है, यूट्यूब पे भी बहुत कुछ मिल जाता है, करके कर लेता हूँ, है ना। या एक हाई प्रोटीन डाइट एकदम से अपनी बॉडी को देनी शुरू कर देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है जिम जाना तो उससे वेट कम हो जाएगा। तो यानी ये नहीं करना चाहिए इंडिविजुअली, तो नहीं करना चाहिए, बट लोग और कहाँ, मतलब ये मीडियम बन चुका है ना अब। तो इससे क्या हो रहा है ना, देखो हमारी बॉडी परफेक्ट कब चलती है? जब होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है। होम्योस्टेसिस मतलब एक परफेक्ट सिचुएशन बॉडी के लिए, बिल्कुल सही है ना। अब वो आप एक मल्टीविटामिन तो ले लिया, आपको पता ही नहीं है कम क्या है, ज्यादा क्या है, कम क्या है। देखो, ज्यादा होना भी गलत है, है ना, समझ गया, और कम होना भी गलत है। तो यार वो होम्योस्टेसिस मेंटेन होने के लिए एक ब्लड टेस्ट से तो होगा नहीं वो कभी, आपको और फ्रीक्वेंट चेकअप करने पड़ेंगे, और आपको स्पेसिफिक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, कुछ इंटीग्रेटिव मेडिसिन यूज करनी पड़ेगी, कुछ किनेसियोलॉजी, ताकि आपको पता लगे कि बॉडी में क्या कम हो रहा है। ऐसे नहीं कि विटामिन डी कम है तो विटामिन डी दे दिया, चेपी लगा दी, नंबर्स में दिखाएगा, फिर बोलेंगे ब्लड रिपोर्ट कराओ, विटामिन डी अप होगा उसमें, बट the other numbers that it's throwing off, the hormonal pattern it starts throwing off,
that has the biggest impact on your body ना, which is seen later and nobody is able to refer it back and say यार मैंने उस टाइम ये करा था, विटामिन सी खाया, जिंक जैसे जिंक तो डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रही है बॉडी में, जिंक खाई जाओ, जिंक खाई जाओ, है बीकासोल खा लो, हाँ बीकासोल खा लो, राइट। अब मैं आपको एक बात बताऊं, 90% लोगों के पेट में HCl की कमी है, जिसके HCl की कमी है वो सप्लीमेंट वैसे ही अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है बॉडी। HCl क्या होता है? ये हाइलोक्लोरिक एसिड होता है। एक हमें नॉर्मली क्या होता है कि खाना खाने के बाद ना हमें एक वार्म फीलिंग होनी चाहिए, जो हम लोगों को होती नहीं है। वो मतलब खाना आपका डाइजेस्ट हो रहा है। अच्छा। HCl इज अ काइंड ऑफ एन एसिड दैट हेल्प्स यू ब्रेक डाउन द फूड, और वो गट लाइनिंग में होता है। कई लोगों का क्या 99% ऑफ द पीपल आर हैविंग सम काइंड ऑफ HCl डेफिशिएंसी। आपको ये भी पता है कि लोगों के पेट खराब है, हाँ। है ना? तो आधा काम हार्मोनल जो हो रहा है, डोपामीन, सेरोटोनिन, इट्स ऑल कमिंग फ्रॉम योर गट। तो जब गट ही सॉल्व नहीं होगी तो बाकी चीजों को क्या करोगे? हाथ पैल्पेट हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, रूट पे जाते जाना है। एक दिन में नहीं मिलेगा ये ब्लड रिपोर्ट, 2 दिन में नहीं बढ़ी जाएगी, महीना भी बढ़ते जाओगे तो कम है। तो आप ऐसा बंदा ढूंढिए आपकी हेल्थ के लिए, जो आपकी हेल्थ के लिए एक्चुअली केयर करता है। जैसे और कामों में बोला जाता है, आप ऐसा ही बंदा ढूंढते हो ना अपने ऑफिस की हेल्प के लिए या अपने बिजनेस के लिए, जो अपना काम जो आपका काम अपना समझे, राइट, है ना? लेकिन मुझे ना खाना खाना गर्मी लगती है अक्सर, तो ये नहीं मेरा ठीक HCl ठीक है मेरा, ठीक है। कभी भी हल्का पसीना भी आता है, मेरे पेट में देखता हूँ थोड़ा बड़ा है पेट मेरा, लेकिन मुझे लग रहा है HCl ठीक है मेरा एटलीस्ट, बाकी पता नहीं। अच्छा, ये हमने डाइट की बात कर ली। एक ना मैंने पीछे देखा था, नए वीडियोस देख रहा था बहुत सारे, तो उसमें कुछ लोग बोल रहे थे कि ट्रेडमिल पे नहीं भागना चाहिए, ट्रेडमिल पे भागने से घुटने खराब होते हैं, या ट्रेडमिल मत यूज़ करो, रोड पे भाग लो भले जाके, फिर जिम चले जाओ, या ट्रेडमिल पे ज़्यादा देर चलोगे तो घुटने जाएंगे थोड़ी एज के बाद। ये सच है? कुछ सच है, हाँ, कुछ गलत है। अ लॉट ऑफ डिफरेंट अदर एक्टिविटीज इन आवर लाइफ पुट मोर लोड on our knees than a treadmill might would. Okay. But एक चीज़ ज़रूर है कि ट्रेडमिल का जो मेकअप है, उस मेकअप के हिसाब से, because you are catching the belt, because the belt is moving, it's not stationary, उस मैकेनिज्म की वजह से एक राइट रनिंग फॉर्म अटेन नहीं हो सकता। Okay. तो इसलिए लोगों के कई बार घुटने भी दर्द होते हैं और बैक पेन भी होता है। राइट रनिंग फॉर्म जो होना चाहिए वो अटेन। रनिंग इज एन ओलंपिक स्पोर्ट, वॉकिंग इज ऑल्सो एन ओलंपिक स्पोर्ट। दे नो द ऑप्टिमल वे ऑफ रनिंग। हमें क्या लगता है, जूते पहनो भागना शुरू कर दो। पीयूष, 9 out of 10 people are running wrong. Every step they take in that jog is hurting them. I'm telling you this because running is a lot of practice. मैं आपको बताऊं रनिंग का स्टेप असली में क्या है। स्प्रिंटर का या जो प्रोफेशनल रनर्स होते हैं उनका कैसा होता है, जैसे आप कभी चल रहे होते हो ना, तो आपका पैर कहीं फंस जाता है, आप स्टम्बल करते हो बट गिरते नहीं, अपने आप को पकड़ लेते हैं। तो उस टाइम आपने कोई एफर्ट करा होता है वो आगे बढ़ने के लिए? नहीं करा होता। तो रनिंग का हर स्टेप ऐसे होना चाहिए, एफर्टलेस, जिसमें आप लीन करते हैं। देयर इज ड्रिल्स टू इम्प्रूव दिस एंड वी आल्सो हेल्प पीपल follow a program. We develop their running form, we monitor their strike rate etc, what the cadence, what's going on, उनका रनिंग फॉर्म उनका कैसे करेक्ट करना है ताकि फ्यूचर इंजरीज ना हो। और ये इस पे भी बहुत ज्ञान है गूगल पे कि भागना कैसे चाहिए, मैंने देखा है पीछे। वो तो बगैर करे हो ही नहीं सकता, पढ़ के हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों मतलब ध्यान रखो, गूगल पे जो पढ़ रहे हो, चाहे वो डाइट्स के बारे में हो सकता नहीं कि आपकी बॉडी को सूट करे ना करे। जो भागने के बारे में देख रहे हो, पता नहीं आपकी बॉडी को सूट करे ना करे, क्योंकि किस शेप में क्या बॉडी है पता नहीं आपको। तो बेटर है किसी को कंसल्ट कर लो, किसी डाइटिशियन को या ह्यूमन परफॉर्मेंस कोच लाइक तनवीर हिमसेल्फ, ऐसे इंसान को जो आपको एक्चुअली में हेल्प कर सके आपकी बॉडी को एक अच्छी पोजीशन लाने के लिए। तनवीर, वन लास्ट क्वेश्चन, राइट? जो जैसे पॉडकास्ट का नाम है करियर्स की बने, राइट? लोगों को ज़्यादा बताना है कि अब वो कैसे बन सकते हैं टू बी अ ह्यूमन परफॉर्मेंस कोच, राइट? और क्या और इसमें डिटेलिंग में पढ़ सकते हैं, तो थोड़ा सा एक बार क्विकली लोगों के लिए समराइज करते हैं कि हाउ दे कैन बी देयर वेयर यू आर टुडे, है ना? और कैसे अगर वो इंडियन टीम में कोच बनने चाहें तो उसमें भी क्या कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, कहाँ से निकालने, थोड़ा उसके बारे में भी। फील फ्री ऑल्सो टू कंसल्ट मी, आप मेरे को क्वेश्चंस भी भेज सकते हो। Sure. मैंने आपको ये भी बताया था कि आप किसी भी हेल्थ एंड वेलनेस फील्ड में कुछ ना कुछ करना स्टार्ट करिए।
हम लोग भी जो कोर्सेज यहाँ पे करने वाले हैं वो थोड़े से 1 स्टेप एडवांस्ड हैं. तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूट्रिशन, आपने कोई एक बेसिक फिटनेस कोर्स या पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स कराओ, आप फिटनेस वर्ल्ड में ही, वेलनेस वर्ल्ड में ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते जाइए. और अगर आपको स्पेसिफिक ह्यूमन परफॉर्मेंस और किनेसियोलॉजी के राउट जाना है और इसकी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करनी है, आप हमारे पास आ सकते हैं. और वी आर अबाउट टू ऑफिशियली लॉन्च, लाइक आई सेड बिफोर, इंस्टीट्यूट ऑफ Cromaco, right? Cromaco Institute, which would be India's first kinesiology and human performance academy or institute or a lab you want to call, where we will, help people attain these Attain things that knowledge by letting them know what doesn't work. What doesn't? Wow, that's great. ये कोई नहीं बताता what doesn't work, है ना? तो तनवीर, अगर कुछ लोग कमेंट्स में हमसे पूछेंगे कि कैसे बनना है, कहाँ से पढ़ना है, तो क्या आप उन्हें बता दोगे? मैं आपसे पूछूंगा, हाँ, आप बता जवाब देंगे. दोगे? और मैंने आपको बोला है इंडिया में हम करते हैं, हम फर्स्ट वंस हैं, हम कोर्सेज करते हैं इसके. आप कंसल्ट कर सकते हैं, आप आ सकते हैं. वी ऑल्सो गिव जॉब अपॉर्चुनिटीज, वी ऑल्सो हैव इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज. आई एम अ बिग सकर फॉर पीपल हु वांट टू वर्क हार्ड, who are actually doing something in this world of influencing. जहाँ बगैर करे लोगों को कुछ भी मिलता जा रहा है, सही कह रहे हो, है ना? और सब चीज डिजिटाइज हो गई है, सब कुछ एआई हो गया. यार दिमाग कब चलेगा, है ना? लोगों को लग रहा है मशीनें लगा लो बस, हाँ, मशीनों से काम चलेगा. मशीनों से काम नहीं चलने वाला. मेरे पास मशीनें हैं ना, एक मशीन 25 लाख की मशीन है, वो बोलती है 4 बारी इसको 10-10 मिनट के लिए बैक पे चला दो, हाँ, और ये बैक ठीक हो जाएगी. अच्छा. मेरे को पता है नहीं होगी, 100 चीजें और करनी पड़ेंगी. आपको अपनी थ्योरी लगानी पड़ेगी, उसको ट्वीक करना पड़ेगा. तो ये है. तो ये सबको मैंने अपॉर्चुनिटी दे दी है भाई, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव वाले, क्योंकि तनवीर का जो क्लिनिक है वो दिल्ली में ही है, छतरपुर में. तो यहाँ के जो लोग हैं उनको अगर इंटर्नशिप करनी है तनवीर के साथ, तो कमेंट से बता देना, तनवीर से बात करके इंटर्नशिप दिलवा देंगे तुम्हें. ठीक है तनवीर, ये तनवीर का प्रॉमिस है भाई वीडियो पे. ठीक है. दो working here is a strict application process. Right. I need good people here because when you come here, you unlearn a lot of things. So I don't need any experience here. I need people who are actually willing to learn, willing to take this forward and accepting change and are coachable. स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, तनवीर का कहने का मतलब है एक बार दोबारा से स्टार्ट करेंगे, हाँ. है ना? आपकी पूरी ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट करेंगे और आपको सिखाएंगे सब कुछ, राइट? वो गाड़ी आती थी ना बचपन में खेलते थे, आगे चली जाए फिर उसको ऐसे पुश बैक करके पीछे खींचते, पुश बैक, फिर आगे भागती थी. बस वही चाबी भरेंगे हम आप में, फिर आप दौड़ोगे. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तनवीर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस टाइम, है ना? इतने सारे ज्ञान के लिए. बहुत सारे नए वर्ड सीख लिए आज, बहुत सारी ह्यूमन परफॉर्मेंस कोचिंग भी कुछ होते हैं, ये भी सीख लिया, राइट? तो थैंक यू सो मच फॉर दिस. हैड अ रियली ग्रेट टाइम. आई होप लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो से. तो गाइज़, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट तनवीर के साथ. मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत सारी नई चीज़ें सीख ली आज, बहुत सारे अच्छे वर्ड सीख लिए. बॉडी पे खुद कुछ नहीं करना चाहिए, स्पेशली गूगल से पढ़ के मत करना, जैसे तनवीर ने कहा था. ठीक है, किसी अच्छे प्रोफेशनल को हायर कर लेना, उसके साथ करना. इसी के साथ आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं. बट हाँ, आपको किसी भी करियर के बारे में कुछ भी जानना हो, मुझे कमेंट से ज़रूर बताना. अगली बार उसी करियर के लोगों को लेके आऊँगा, उसी करियर के प्रोफेशनल्स को लेके आएंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे डिटेलिंग में जानेंगे. ठीक है, तो किसी भी करियर का डू लेट मी नो इन कमेंट्स, वील गेट द पीपल फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ ग्रेट डे.